बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल में आप जितने नाजरीन हैं, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है. ऑल द व्यूअर्स, आई से हाय टू यू एंड इट्स ग्रेट matter of joy that today is 31st May 2024, and this day has been dedicated to World No Tobacco Day. तंबाकू के खिलाफ आज को डेडिकेट किया गया 31 मई को 2024 को. और इस मुतालिक जो है हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है बोलते आने यूट्यूब चैनल में, वो एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं आपको तारुफ तो कराऊंगा ही, और साथ में आज के इस दिन पे जो नो टोबैको डे है उससे मुतालिक जो है इस सब्जेक्ट पे बड़ी अच्छी तरीके संगीन तरीके से हमारी चर्चा होगी. तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आज की जो हमारी पर्सनैलिटी हैं, ही इज फ्रॉम द सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर एंड इज नो अदर देन डॉक्टर हरविंदर बख्शी. Dr. Harvinder Bakshi ji, and he will be throwing light on the subject on World No Tobacco Day. I would like to tell you, my dear, about Dr. Harvinder Singh Bakshi ji. He is the winner of prestigious Indian Achievers Award 2024 CEO of the Year in the social sector category. And presently, he is the strategic advisor to Concern for Humanity, a prominent national NGO which has been focusing on providing remedial education and holistic care to the children, and particularly those children, those who are living in a slum or they're from the deprived section of the society. Earlier, Dr. Bakshi was the Chief Executive Office of CEO of Global Cancer Concern India. And before that, he had held the position of National Director Advocacy in HelpAge India, a well-known NGO. He has a very wide knowledge in the education sector and holds a PhD degree in sociology, and after that postdoctoral course in social gerontology at United Nations Institute at on Aging in Malta, Europe. Besides this, he has been to journalism and industrial relations, etc. But due to paucity of time, I'll be just telling you that besides all these academic and social commitment, he is a very well-known poet and a writer, and has been writing for several years on the theme of, and basically tinged with humor and satire. His two books have recently come on Samsaik Kavya and Samaik Swar, and these have been published and are available on Amazon. डॉक्टर बख्शी साहब, मैं आपका बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, प्रणाम कहता हूँ. आज मैं तो कनाडा में बैठा हुआ हूँ ब्रैम्पटन में, और आप फरीदाबाद में बैठे हुए हैं हरियाणा में. तो इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप को सलूट करते हुए आज जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, उसके दिन मैं आपसे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करते हुए ये कहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताने के साथ वो बताइएगा कि जो मैंने दो किताबों के बारे में अभी मैंने बताया है, समसायिक काव्य और समय के स्वर, इनको प्लीज अगर अवेलेबल है इस वक्त उसको हमारे दर्शकों को दिखाइएगा प्लीज, और फिर मैं आपसे सवालात शुरू करता हूँ. वो बताइएगा वो किताबें कौन सी हैं जो अमेजन पे अवेलेबल है. Samson, first of all, I appreciate you that you have selected a very important topic for your channel, because there's a glaring requirement of awareness regarding this issue. And regarding my books, I'm very thankful that you have invited me to this show, and it will be my pleasure to inform the people regarding this issue. Now, regarding my books, I'm just showing these two books. Very nice. समय का स्वर, समसामयिक, Samsamayik Kavya. So my poetry is dedicated to national important issues. So, and yes, of course, I use satire, and this is required.
Now, as far as myself concerned, you have already given a very good introduction, and thank you very much for that. And the theme of this channel, this show, is No Tobacco Day. And what is No Tobacco Day? So we can see the history. You see, WHO, right from 1987, has been crusading against this epidemic of tobacco. So in 1987, it announced that 7th April 1988 would be no smoking day. Okay. And in 1988, it passed a resolution that every year on 31st May, no tobacco day will be observed by the member states. So this is very important because the companies, the manufacturers of cigarettes and other tobacco products, they have been targeting the children and the youth. Okay. And they are doing it in a very systematic manner, very subtle manner. You see, they use extensive social media and streaming platform campaigns to allure the children and the youth to the products of tobacco. Now, what is to be, WHO is urging the member states that there should be awareness campaigns, there should be efforts so that there is a decline in the consumption of tobacco and tobacco products. So the theme of this year, every year there's a theme. WHO fixes a theme every year regarding this issue. And the theme for this year, 2024, is protecting the children and thus the future generations from products of tobacco. And also, there should be a decline. There should be good decline in the consumption of these products, because it's very dangerous. It is very dangerous because tobacco throughout the life course affects human beings. During pregnancy, if there is a exposure to, I'm not saying consumption, exposure also. Consumption and exposure both. If there is a consumption and exposure both of tobacco products, then it can cause stillbirths, it can cause congenital defects in the child. And during childhood, if this is there, then there can be respiratory diseases and also physical disabilities. So it's not a question of one stage, it's entire life. So we are consistently exposed to these the bad effects of tobacco. So this is the theme of the No Tobacco Day for this year. बख्शी साहब, एक आपसे निवेदन ये है कि हमारे दर्शक जो हैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर सब्जेक्ट को बिल्कुल हम बिल्कुल करेंगे आगे, जिस तरीके से हमारा बिल्कुल गुरु आगे बढ़ता है। और एक आपने काफी इलेबोरेट तो कर दी एक बात। मैं अपने दर्शकों को एक बारी फिर से मैं बता दूं कि आप सीईओ हैं, जो कि ग्लोबल कंसर्न ये थे पहले, अभी प्रेजेंटली ये कहीं और हैं। तो आप जो हैं ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया,
आप उसके सीईओ रहे हैं और कैंसर से ज़्यादा आपका अवेयरनेस और उसको हैंडल करने में, मैनेज करने में आपने बहुत काम किया है, बहुत साल लगाए। और डॉक्टर बख्शी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्मफुल इफ़ेक्ट जो टोबैको कंज़म्पशन के हैं, पार्टिकुलरली ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बारी का जो 2024 का जो मेन थीम है, वर्ल्ड नो टोबैको डे में, वो चिल्ड्रन और यूथ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं, हानिकारक जो इफ़ेक्ट्स हैं, प्रभाव जो हैं, वो किस तरीके के होते हैं, इसको थोड़ा-सा तफ़सील में बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। इस साल का जैसे आपने बताया कि एम्फेसिस जो है वो जो ज्यादा जोर है वो बच्चों के ऊपर और जो जवान है, यूथ है, उनके ऊपर है। क्योंकि इन इनके ऊपर प्रभाव होता है ये जो सोशल मीडिया या दूसरे प्रिंट मीडिया, सब तरीके के जो कैंपेन्स हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और वहाँ देखते हैं कि उसमें जो इमेज निकल के आती है, वो जैसे दिखाते हैं कि जो सिगरेट पी रहा है वो हीरो है। तो इस टाइप की जो जो थीम जो मैसेज जाता है, वो मैसेज जो है इनके लिए ठीक नहीं है, और उसको इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं ये। तो इसलिए WHO ने ये तय किया है कि इस साल का जो नो टबैको डे है उसका थीम बच्चों को और यूथ को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना है। और इसमें आपने जैसे बताया कि चिल्ड्रन, बिकॉज अभी मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हूँ कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी, तो उनका एम्फेसिस बच्चों के ऊपर ही है। और वो बच्चे भी जो जैसे आपने बताया कि स्लम्स में जो बच्चे हैं, और वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनकी फैमिलीज में भी चलते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। वो देखते हैं माँ बाप को सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरफ। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको हम अवेयर करें, उनको जागरूक करें, उनको भी, उनकी फैमिलीज को भी, ताकि इस सब चीजों से बचा जा सके। अभी इसका प्रभाव जो है सिगरेट का, मैंने बताया कि अगर प्रेगनेंसी में इसका इसके इसको कंज्यूम करती है लेडी, या एक्सपोज होती है, दोनों ही चीजें, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, पड़ सकता है। और उसमें डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, उसमें स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो इस तरीके के खतरे हैं इसमें। जहां तक दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसमें यह है कि ये कैंसर जो है, कैंसर और इसका काफी अच्छा कंसर्न है। मतलब इसका अभी जितने भी स्टडीज हुई हैं वो इंडिकेट करती हैं कि ये इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। इसमें बहुत ज्यादा खतरे वाला फैक्टर है ये। और क्योंकि जो जब अब स्मोकिंग में जो पॉइजनस धुआं होता है, वो क्या करता है, वो जाके DNA को प्रभावित करता है। और DNA क्या है, वो कंट्रोल करता है हमारी सेल की ग्रोथ को। अब जब वो प्रभावित हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो वो आउट आउट उसकी जो ग्रोथ है सेल की, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो एक ट्यूमर इज फॉर्म, ट्यूमर बन जाता है, और वो भी बाद में फिर वो मैलिग्नेंट हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। तो ये इसका डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन मार्केटिंग कंपनी जो टबैको कंपनीज है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो अपने करते रहेंगे। लेकिन जहां तक इसका जहां तक कोशिश होनी चाहिए, वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आदमी खुद ही कंज्यूम ना करे, इससे दूर रहे। अब उसमें लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, और अभी फिल्म में भी कोई सीन आएंगे, ये काफी एडवोकेसी के बाद हुआ है। WHO ने बहुत काम किया, और मेंबर स्टेट्स ने भी अपनी अपनी तरफ से बहुत काम किया इसके ऊपर। और कोशिश ये हो रही है कि इसमें डिक्लाइन हो, इसकी कंजम्पशन में कमी आए। तो ये पूरी कोशिश हो रही है। तो कैंसर इसके साथ हो सकता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। बाकी तो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों का, वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो अगर वो उनके उनकी फैमिली में एक्सेसिवली स्मोकिंग हो रही है तो भी होगा, उनका धुएं से भी फर्क पड़ेगा। तो एक्सपोजर भी एक अनदर फैक्टर है। कंजम्पशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक्सपोजर भी है। अच्छा, ये बताइए बख्शी साहब कि
कौन कौन सी ऐसी और एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं? जैसे मान लीजिए स्कूल है, एनजीओज हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग तालीमी इदारे हैं, या अलावा उसके और भी है गांव में। किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज को आप प्रमोट कर रहे हैं या किया जा सकता है? भारत सरकार अपने प्रयास कर रही है, एनजीओ अपने कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा खतरनाक और ऐसा पेरिलस सब्जेक्ट है जो कि बहुत हार्मफुल है। तो इस पे कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे वाली फोक मीडिया हो गया, या एजुकेशनल बुक्स होकर हो गया, या थिएटर हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, इन तमाम, आपकी तरफ से कौन से ऐसे प्रयास हैं जो कि आप ले रहे हैं? When I was in GCCI, Global Cancer Concern India, the wide spectrum of activities, and we were relentlessly trying to create awareness regarding this. तो उसमें क्या होता था कि हम स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयरनेस टॉक्स तो देते ही थे, वो तो है ही है। उसके साथ हम थिएटर उनसे परफॉर्म करते थे, पेंटोमाइम, उसके जरिए बताते थे क्या इफेक्ट है एक स्टोरी बना के। और इसी तरीके से मॉल्स के अंदर जाके जो स्टूडेंट्स जो बट होते हैं उनको हम इनकरेज करते थे, मॉल्स के अंदर जाके वो क्या करते, स्टॉल लगा देते थे, उसमें जाकर प्लेज लेते थे, लोगों को कहते थे प्लेज लो कि बढ़िया। वी विल नॉट हम्म, स्मोक। हम्म, 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 इसी तरीके से हम्म, जी। ये एक देयर इज सम प्रॉब्लम, एक नहीं मिनट। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आ रहा है। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं विजिबल, विजिबिलिटी हाँ है मेरी? बिल्कुल, एवरीथिंग इज ओके विद मी, वी अच्छा, आर गेटिंग यू वेल। हाँ, तो मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ और आ गया। एनीवे, सो वो वहां पे जाके ये करते थे, इसके बाद रैलीज करते थे। और WHO ने भी ऐसी बहुत सारी इवेंट्स जो है सजेस्ट की हैं, जो जिसमें कि सारे मेंबर स्टेट्स उस उन चीज़ों को कर रहे हैं जो मैंने चीज़ें बोली हैं, ये भी हैं। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, पेंटिंग है, जैसे आपने बताया पेंटिंग कंपटीशन है, कि उसमें सो दैट द अटेंशन ऑफ द पीपल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस इशू। तो ये सब चीज़ें एफर्ट्स हो रही हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बख्शी, ये बताइए कि आखिरी में चलते चलते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य एंड अलावा उसके थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पे अगर जाएं तो एशियन जो जो पर्सपेक्टिव है साउथ एशिया का विशेषकर, तो इसमें जो स्टेटस टोबैको कंजम्पशन की है क्या, और इसके क्या इफेक्ट हमारी हेल्थ ऑफ पीपल पे पड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि जो इंडिया में अबाउट 30% ऑफ द मेल्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं टोबैको, स्मोकिंग। और जो स्मोकिंग से जो डेथ है इंडिया के अंदर, वो 12 से 13 लाख है, 1.2 to 1.3 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर ये होती हैं। दे आर these deaths can be attributed to smoking। और जो स्टेट्स इसमें ज्यादा जिसमें कंजम्पशन है उसमें सबसे ज्यादा मिजोरम है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार है। इनमें 60% से भी ऊपर जो मेल हैं वो कंज्यूम करते हैं इसको। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग हैं, वो पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग, लेकिन एक एवरेज जो बताया गया वो 30% के करीब जो मेल है वो इसको सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो कैंसर है, क्योंकि सिगरेट इज रिलेटेड टू कैंसर, स्मोकिंग इज रिलेटेड टू कैंसर, तो कैंसर इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें कैंसर बर्डन जो है, क्योंकि ओवरऑल मतलब नॉट ड्यू टू स्मोकिंग, अदर 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 टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। जो इंडिया के अंदर जो कैंसर्स हैं उसमें नए केसेस जो हैं वो 1 मिलियन केसेस आर एडेड एवरी ईयर, न्यू केसेस कैंसर के 10 लाख के करीब। और उसमें से अबाउट 7 लाख पीपल डाई ऑफ कैंसर। और इस तरीके से जो कैंसर बर्डन है वो बढ़ता जाता है। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये है, लेकिन वो इतना इतना बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन साइज एडुकेट नहीं है।
तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये भी WHO की प्रेडिक्शन है कि ये जो फिगर्स मैंने आपको बताई है ये 20 साल में डबल होने वाली है। ओह। तो इसमें ओनली वे इज क्रिएटिंग अवेयरनेस और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आप डेवलप कर लोगे, अगर कोशिश करनी चाहिए कि इससे बचा जाए। प्रिवेंशन जो है वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अवेयरनेस और इसके ऊपर सारा हमारा जोड़ रहा है। और गवर्नमेंट भी अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जब कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे पे, और जो जैसे नो टोबैको डे है, वो भी अपना अपना पूरा कोशिश करते हैं। और NGOs तो कर ही रही हैं अपने 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 लेवल के ऊपर। इसी तरीके से कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी जो है बच्चों को एजुकेट करती रहती है अपने अपने रेमेडियल क्लासेस में। जब आते हैं, रेमेडियल क्लासेस होती हैं जब स्कूल में, जो बच्चे अपना स्कूल करने के बाद आते हैं, तो होलिस्टिक केयर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी देती है उनको उनको एजुकेट करती है। उनके ट्यूटोरियल असिस्टेंस तो है ही है, इसके अलावा भी उनकी जो ये हेल्थ हेल्थ न्यूट्रिएंट्स है जो ये इनको देती हैं। और उनको कोई डाइट भी देते हैं अच्छी, ताकि वो उनका, क्योंकि फैमिलीज उनकी पुअर है, वो अफोर्ड कर नहीं सकते, ना ही उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो उनको ट्यूटोरियल असिस्टेंस के साथ ही सारी होलिस्टिक केयर देते हैं ताकि वो अपना स्कूल पूरा करें। और उसका पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, और इसमें ये हुआ है कि बच्चे निकल के MBA और टीचर्स स्कूलों में, इनके अपने स्कूलों में भी सेंटर्स में टीचर हो गए हैं। तो उससे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है फैमिली की, पॉवर्टी से निकल के बाहर आ जाते हैं। बहुत अच्छा। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताऊं, बड़ी मुसर्रत की बात यह है कि बख्शी साहब और मैं यानी सैमसन डेविड 1980 से 85, from 1980 to 85 we were together, we worked together, he was my boss at that time, and we were together with Helpage India. This was a part of Helpage International part, और हम दोनों ने मिलके 5 साल लगातार 1980 से 85 तक एजेड लोगों के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बहुत काम करा। बड़े डोनेशन इकट्ठे करे हमने, कई ओल्ड एज होम्स बनवाए, कई मोबाइल केयर यूनिट कराए, मेडिकेयर जो सेक्टर में बहुत काम करा, जेरेंटोलॉजी के लिए वगैरह 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 वगैरह, बहुत काम करा। कि ये एक बात है, बहुत पुरानी बात है, और पूछो ना यारों कि ये जवानी कैसे गुजर गई, कि जैसे सूरज की धूप थी की चढ़ी और उतर गई। वेरी नाइस। तो बख्शी साहब, बहुत खूबसूरत। ये बताइएगा कि आखिरी में बहुत ही आप थोड़े से वर्ड्स के अंदर कुछ मैसेज देते हुए इस प्रोग्राम को हम खत्म करें, कुछ मैं मैसेज। तो ये कहना चाहूंगा, मैसेज यही है, और वो WHO का ही मैसेज है, भारत सरकार का मैसेज है, कि जहां तक भी हो सके प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, बचाव ही बचाव में बचाव है। जहां तक हो सके ये सिगरेट या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचें। अपने बच्चों को भी समझाएं कि एडवर्टीजमेंट देख के और मीडिया में, सोशल मीडिया में जो मैसेजेस आते हैं उनसे उनको डिसाइफर करके उनको कोशिश करें कि वो उनको ना उसका अनुकरण करें। बहुत बहुत तो शुक्रिया। डॉक्टर बख्शी साहब आज हमारे साथ शामिल थे वर्ल्ड नो टोबैको डे के इस मजमून के ऊपर। मैं तमाम दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि बोलते आए यूट्यूब चैनल जो है, इसकी मार्फत आपको म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, तालीम, सोशल मैसेजेस और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है करंट अफेयर्स में, उससे मुतालिक हम इंटरव्यूज दिखाते हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज को बुला के, व्यक्तियों को बुला के। आपसे गुजारिश है कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बख्शी साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच। चंदन। थैंक यू।